Hi guys! So it's your very own Juhi Sharma aka Sila ji. So sorry. But Sila ji is like that only, guys. So coming to Sila ji, I would say very beautiful person from inside as well as from outside. Very strong, very opinionated, very bold, very unconditionally loving person, but also she's very adjusting, she's very misunderstood, she's also very layered, she's also very dissatisfied person in some sort of way for me, because I think she is expecting something and then something gets to her in return. So शी इज़ अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर इनसाइड आउट. बहुत सुंदर है शीला जी, बहुत सुंदर है. शीला जी की बातें, शीला जी की हंसी, शीला जी कैसी दिखती हैं, शीला जी का पहनावा. पहनावा से याद आया, जो 2-3 दिन हम लोग शूट कर रहे थे, सो शीला जी ओनली हैड टू बी इन ओनली वन गारमेंट, दैट वाज अ वेडिंग गारमेंट. उनको सेम कपड़ा 2 दिन पहना है मैंने. आई हैड टू वेयर द सेम ब्यूटिफुल लहंगा दैट आई वाज वेयरिंग for 2 consecutive days, and for that only I had to struggle. बिकॉज मेरा क्या है ना, जैसे मैं धूप में निकलूंगी ना, आई स्टार्ट टू स्वेट अ लॉट. अब जैसे वो लहंगा पहन के आई हैड टू खींचोफाई, बिकॉज इट्स अ वेडिंग लहंगा, ये शादी वाला लहंगा है. इट्स नॉट समथिंग 4-5 किलो वाला. इट इज़ वेरी हैवी. इट इज़, आई थिंक फॉर मी इट वॉज अबव लाइक, was it 10 kgs? I think I'm exaggerating. 10 kg तो नहीं होगा यार. हाँ, 10 kg था आई थिंक. मैं गलत भी हो सकती हूँ. इट इज़ राउंड अबाउट दैट ओनली, बट इट वॉज वेरी हैवी, आई स्वेयर. और मैंने हील्स भी पहनी हुई थी पूरे टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी शादी थी, तो आई हैड टू बी लाइक ऑल ब्यूटिफाइड और बहुत सुंदर 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 सुंदर. मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड गॉट मी रेडी. सो शीला जी is gorgeous, and she's very different from me as a person. She's a little into herself. I like to be about everybody, about my surroundings, about whatever is happening aspas. But Sheila ji is more about herself, priority, her happenings, her choices, and she for herself matters a lot. So yeah, that's what Sheila ji is. And she really want to be to be married to a guy who's very beautiful, who understands her, who loves her to some other level. She has a specification also about what a dream man to her looks like. So Sheila ji is very beautiful if you understand the layers that she has. So Mr. Nannu's journey from my perspective has been like a bull ride. Like I was riding a bull and I have to be bouncing, hopping, going there, everywhere. Because I had to go state to state. I was going country, coming back to India. Then I had to go and work on Sheila also. Then I had to recite my dialogue. So it was a very cluttered world of mine, because I was working also there. And then for Mr. Nannu, I have to save my energy, because I need to be giving my 100% to Mr. Nannu as well. But what made everything so easy is the team effort. The entire team made me feel like I am not an individual person trying to work hard. Everybody was there. Everybody stood by me. Everybody helped me in so many ways. Everybody understood me. Everybody was just standing next to me. And I'm so thankful that I got the chance to work with so many amazing people. And I'm glad I've met them. I've worked with them. And I am kind of sort of taking them in my life forward, off screen, on screen, both ways. And if you ask me about the best memory, is that we had a little pack-up party while we had shot the last scene of me and Mr. Nannu. We had a little dancey in the nights. We had dance, we all had fun, we had sweets,
So I usually do not take, try not to take sugar, but I love meetha and I cannot say no to meetha. So we had brought, Tarun himself had brought home cooked dal chawal. I still remember the taste. It was so delicious. So कि मैंने 3 चमचा और दाल डलवाई थी, और सबको ऑब्वियसली सस्पिशन हुआ होगा कि भाई ये इतना खाती है क्या, बिकॉज आई डोंट ईट इतना ज़्यादा ऑल्सो, बट अगर कुछ ज़्यादा टेस्टी है ना तो मैं खाती जाऊँगी खाती जाऊँगी खाती जाऊँगी खाती जाऊँगी. एंड देन इसके बाद वी हैड छोटू से मफिन्स, एंड देन वी हैड छोटू छोटू से चीज़ें एज फॉर सेलिब्रेटरी थिंग्स. So that memory is what had me all energized. So I am kind of sort of making good memories with the best people, and I'm gonna cherish them for life. Because अगर मैं अभी उस चीज़, okay, so now I will be giving the hashtags to my team members. Okay, everybody, I'm conclusively saying, मुझे अगर सबको hashtag देना होगा तो वो क्या होगा? ओके ओके ओके, दिस इज़ ओनली फॉर द कैरेक्टर्स. हाँ, ये सिर्फ मैं कैरेक्टर्स की हैशटैग बता रही हूँ. नहीं 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 नहीं, पर्सनली. सो तो आई विल टेल यू कंपाइल कैरेक्टर का हैशटैग भी और ये वाला हैशटैग भी, कि इन दोनों में से पर्सनली वो लोग, हम लोग ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन कैसा था. सो अभिषेक, caring. He's very caring. He took good care of me. Anisha, best friend. Anisha is my best friend. She took good care of me also, and she was there with me all the time, saving my everything. Dhruv, aka Nannu ji. Pookie, Pookie. He's my Pookie husband, okay? And Manoj, our very own director. Oh, the greatest of all, I think, GOAT. Yeah, yeah. Too much respect and love for him. Manya, the person who did my makeup, and the one that I think I'm very attached to her in so many silent ways. I would call her my sister. She's my sister, my cute sister. She's been, oh, I have to tell you this scene also. There's a very crazy scene with Manya when I wanted to pee in the night around 2. हम लोग गए हैं washroom के लिए. We had to go like a bit far away from the place where we were shooting and staying. जाते जाते जाते, I heard somebody calling me and Manya. So me and Manya, we turned around कि आवाज़ किसने लगी. Then we met each other with an eye contact, and then we looked back and then we ran off. I swear, हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो गई थी. हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे. Epic scene. This is the one of the best memories I have from there. Jatin. Brown Munda. Very changa siya, very changa. Very, very, very nice person. Very sweet person. One hashtag that I would give him would be macho. Yeah. Tarkeshwar. Oh, he's the bestest of all. I think he made everything so easy for me in all the senses. I think I did connect to him in so many ways that I cannot even express. Tarkeshwar has been like very, 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 very close to me. Even when I mean, it was visible to everybody. सबको दिख रहा था कि तारकेश्वर और मेरे बीच कितनी ज़्यादा बॉन्डिंग है. शायद दिख रहा हो, शायद नहीं, पर पता नहीं. मुझे लगता है कि I just very much resonate with him. I would love to have a friend like Tadkeshwar in my life. I can keep Tadkeshwar with me all my life. I love you, Tadu. Yeah, that's his nickname. And then Tarun. Tarun, food truck. He's a food truck. He fed us, so he's gonna be a food truck. Yes. Okay, thanks. I think I'm done with the hashtags. And the rest of the team, it was very sweet, very nice. I had super fun. It was beautiful to
days of my life, and I think I learned a lot also. I think slowly, gradually, I am learning, and yeah. Thank you, Manoj. Thank you, Tarun, for whatever you felt that I could do, and with whatever you still feel that I am capable of. Thank you, 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 thank you. And yeah, a little speechless I get when I do not have words. I'm very bad with expressing my emotions, but mm, thank you for believing in me, and थैंक यू शीला को इतना ज़्यादा मुझसे अलग बनाने के लिए, बिकॉज शीला को मुझे एक्सेप्ट करने के लिए भी थोड़ा प्रोसेस चाहिए था कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, और दिस इज़ लाइफ इन पर्टिकुलर ऑफ ऑल सेंसेस, एंड इंसान के यही कैरेक्टर स्केचेस है और इंसान इसी तरीके से होते हैं. सो एक्सेप्टेंस एंड बिल्डिंग द सेंसेस कि इसको मैं कैसे कर सकती हूँ was a bigger part for me. So thank you so much for this entire learning to the entire team, and I am hoping to see everybody super soon. Happy New Year everybody, lots of love. Bye bye. हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनीशा उर्फ प्रिया. तो आजकल तो बहुत सारी शादियाँ हो ही रही हैं. शादी है, होती रहती है, लेकिन एक शादी है जो सबसे अलग है. आई मीन इट्स एबनॉर्मल. ये यूनिक है, सबसे अलग है. ये है नन्नू और शीला की शादी. मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, आना पड़ेगा. यू ऑल आर इन्वाइटेड विद योर फैमिली इन द वेडिंग ऑफ नन्नू एंड शीला. इस वेब सीरीज़ में मेरा किरदार है दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड का. शीला मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. अगर उसके बारे में कोई कुछ भी कहेगा ना, मुँह तोड़ दूंगी उसका. तो प्रिया का किरदार कुछ ऐसे है कि वो शीला की बहुत अच्छी दोस्त है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी गलतियाँ छुपा सकती है. इस वेब सीरीज़ में हमें बहुत सारे लोग मिले, लाइक मैं मिली उन सब से, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ, कि मैं उन्हें जानती भी नहीं. दे वर लाइक अ फैमिली. बहुत अच्छे हैं वो. तो तरुण भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया और बहुत अच्छे से मैनेज किया. वहाँ जाके ऐसा नहीं लगा कि कहाँ रहें, क्या होगा. नहीं, आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया. लाइक खाने का तो बिल्कुल था ही नहीं कि खाना नहीं मिल रहा. नहीं, ऐसा था बिल्कुल नहीं था. खाना हमेशा टाइम पे आता था, और जब नाइट शूट होता था बार बार चाय कॉफ़ी आती रहती थी. चाय कॉफ़ी आती रहती थी. तो खाने का तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इतना कुछ किया हमारे रहने के लिए, होटल वगैरह. आपने किसी चीज़ की कमी नहीं होनी दी कभी भी. सो थैंक यू अगेन फॉर दिस. आप बहुत काइंड इंसान है और बहुत फ़नी भी, नो डाउट. और वहाँ पर हमें एक मेकअप आर्टिस्ट मिली जो बहुत ही प्यारी थी. मानू नाम, हम मानू उन्हें प्यार से बुलाते हैं, उनका नाम असली मानवी है. तो वो बहुत ही प्यारी है. बहुत ही अच्छी है वो. ऐसा लगता है कि आप किसी नए से बात कर रहे हो तो फॉर्मल हो जाते हो. नहीं, वो हम लोग फॉर्मल नहीं थे. कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो दोस्त मिल गए, ऐसा था कुछ. शीला वॉज टू फ्रैंक. तारकेश्वर भाई बहुत फ़नी थे, बहुत फ़नी. वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे थे. आई वर्कड एज अ CAD ऑल्सो इन दिस वेब सीरीज़. दिस वेब सीरीज़ इज़ डायरेक्टेड बाय मिस्टर मनोज के प्रसाद. बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं. अच्छा, एक इंसिडेंट इससे याद आया मुझे. क्या होता है, इन्होंने ना हमें टाइम दिया था, कॉल टाइम दिया था कि आप लोग आ जाना 7 या फिर 8 o'clock. मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में था कि आप लोग आ जाना. और और हमारा पैकअप हुआ था ऑलमोस्ट 3:30 या 4:30 बजे के आसपास. इस टाइम पे पैकअप हुआ था. तो मैंने तो अलार्म लगा रखा था कि हाँ इस 5 बजे के आसपास मैं उठ जाऊंगी. एंड वाज लाइक ट्र ट्र. मैंने अलार्म अपने हाथ से बंद करके सो गई. लाइक क्या, क्यों, पता नहीं कब हुआ, कैसे, क्यों, पहली बार.
मैं सो गई और मेरी आँख खुली है 6:50 पे, कॉल टाइम इज 7, 6:50 पे आँख खुली, 10 मिनट है सिर्फ। जल्दी जल्दी कैरेक्टर्स को उठाया, जल्दी 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 चलो चलो शूट हो रहा है, शूट हो रहा है, जल्दी जल्दी हमने तैयार किया वगैरह वगैरह, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, हाँ आपका शूट है ना, आप चलिए 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 जल्दी शूट पे गए जल्दी। हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी यहाँ से जा रही, जस्ट यहाँ पे हमारा लोकेशन है, यहाँ जा रही गाड़ी, और हम देख रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब रोड पे क्या कर रहे हैं रोड पे ऐसे कर रहे हैं। करना नहीं है इन लोग को शूट। और हम हो गए भाई साहब, हम तो गए आज, वी आर डेड। हम गए शूट लोकेशन में, हम कहे कि जल्दी जल्दी जो भी चीज़ है, जो भी सेट वगैरह रेडी करना है, जल्दी जल्दी रेडी करते हैं। हम डेकोरेशन कर ही रहे थे, इसी बीच डायरेक्टर सर की एंट्री हो जाती है। क्या कॉल टाइम दिया था तुम्हें? 7 बजे। कितने बजे आ रहे हो तुम लोग? 9 बजे। ये टाइम है? जाओ जाके जल्दी सेट रेडी करो, जाओ। और हम भाग के गए हम भाग के गए कि अब भाई टाइम निकले जा रहा है, जल्दी से हमने सेट वगैरह रेडी किया और शूट स्टार्ट हुआ। वी वर लिटरली 1 आवर लेट फॉर द शूट। ऑफकोर्स रिग्रेशन हुई। हमारा डायरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ही इज़ सो डेडिकेटेड टू हिज वर्क। तो उन्हें ऐसा चाहिए कि टाइम पे काम हो और टाइम पे मतलब ख़त्म हो जाए, ताकि हम वैसे ही लेट थे इतना ज़्यादा, बट इट वॉज मिस्टेक, जो आगे नहीं होगा। मुझे इस बात का गम रहेगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के जा रही है। और जिस लोकेशन पे हम शूट करने के लिए गए थे ना, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लाइक वो बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग ऐसा कहना कि हाँ आप लोग अपना काम करें, हमें कोई मतलब नहीं, आपको मदद चाहिए, आपको मदद चाहिए, जब भी मदद चाहिए होगा तो हमें बुलाइएगा। वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे, दे वर लिटरली हेल्पिंग अस अ लॉट। मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, बहुत काइंड नेचर था उन सबका। तो उस गांव से प्यार हो गया, बहुत अच्छा गांव था वो। अच्छा, एक इंसिडेंट हुआ था जब हम जा रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि इस लोकेशन को डेकोरेट करना है। वो जब हम गए थे और जब हमने उसे डेकोरेट कर दिया, उन दोनों में इतना डिफरेंस था। हम कह रहे कि वाह, दिस लुक सो ब्यूटीफुल। डेकोरेट करने के बाद वो इतना सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और जब हम डेकोरेट करने के लिए गए थे, हम लड़ियाँ लगा रहे थे तो 2 बज रहे थे रात के। तो एवरीवन वाज लाइक भूत वाला वो आ रहा है, सेंस आ रहा है धीरे धीरे कि आवाज़ें सुनाई दे रही है। भाई तुम आवाज़ सुन सकते हो, आवाज़ आ रही है वहाँ से, पता है पीछे कब्रिस्तान है, ये अगर पीछे कोई गिर गया तो। एंड अभिषेक वाज लाइक अब कोई बात नहीं करेगा भूत के बारे में। मैं जा रहा हूँ वहाँ बैठने झूले पर। जस्ट वो गए झूले पर, और झूला है इट्स हैंगिंग ऑन अ नीम ट्री। वहाँ पे वो गए, वहाँ पे जस्ट बैठे एंड डायरेक्टर सर वाज लाइक रात में पेड़ को नहीं छूते। उनकी ऐसी हो गई, ओ भाई भाई अब भी बोला था कि भूत की बात कोई नहीं करेगा और आपने डरा दिया मुझे। बहुत सब लोग डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर भी हमने डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए हमने पूरा डेकोरेट किया। और डेकोरेट करने के बाद वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इट वॉज लुकिंग लाइक ए वेडिंग हाउस। मेरे साथ ऐसा होता था कि उस टाइम पे अगर मैं कोई टॉपिक पे काम कर रही हूँ, किसी इस पे काम कर रही हूँ, तो इसके अलावा मेरे से कोई और बात करेगा कोई और बात करेगा तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये और शी हैव लर्न द एलियन लैंग्वेज। लाइक मुझे नहीं समझ आता था कि क्या बात कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद ऐसा लगता था यहाँ से आवाज़ आई है, हाँ ये हो गया, हाँ क्या कह रहे थे फिर ऐसा होता था। तो जब मैं किसी टॉपिक में जाती थी तो उसके अंदर पूरा घुस जाती थी। उस टॉपिक के अलावा कुछ क्या चल रहा है तो कुछ पता नहीं चलता था क्या चल रहा है। और वहाँ के बच्चे, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि वो ना आए हो। और आखिरी दिन जब हम जा रहे थे तब उन्होंने सबका फ़ोन नंबर लिया था, उन्होंने बोला था कि दोबारा आइएगा। बच्चे बहुत प्यारे थे, वो हमेशा हर टाइम रहते थे हमारे साथ शूट पर। उन्होंने बहुत फ़न किया वहाँ पे, बहुत मस्ती की उन्होंने, लिटरली बहुत मस्ती की। फ्रॉम द डे ऑफ लोकेशन ट्रैकिंग
जब हम लोकेशन पे आए देखने के लिए, वहाँ से लेकर एंड तक वो हमारे साथ ही थे। बहुत अच्छी सीरीज़ है, आप देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर दोगे लिटरली। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बोलूँ ना, दिस इज़ सो फनी। यूनिक तो ऑफ कोर्स है ही, बिकॉज ऐसी वेडिंग तो आपने बिल्कुल नहीं देखी हो। एक मूवी, एक सीरीज़ या फिर कोई भी शॉर्ट फिल्म किसी एक की मेहनत से नहीं बनती है, उसमें सब लोग जुटते हैं तब जाके वो कामयाब होती है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। और सब ने नो डाउट बहुत मेहनत की है, सब ने बहुत फ़न भी किया काम करते करते। ऑफ कोर्स सबकी मेहनत लगी है, तो हम सब चाहते हैं कि आप ज़रूर देखें इस सीरीज़ को। मैंने इस चीज़ से ये भी एक्सपीरियंस किया कि मुझे बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है कि किस तरह से हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, इस चीज़ को हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्या हम इसमें और डाल सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे नहीं इस तरीके से करना है, तो इस चीज़ में ये कमी है, इसमें हम और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस मिला। एक्सपीरियंस से आपको फीडबैक मिलता है उस चीज़ का, एंड दैट्स ऑल। प्रिया को नहीं भूलना, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ शीला, और देखना ना भूले मिस्टर नन्नू। बाय बाय। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम तारकेश्वर कुमार यादव है। मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट और आपके जीरादेई प्रखंड और चांदपाली मिश्र टोला ग्राम के रहने वाला हूँ जी। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप अभिनय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से आप अभिनय कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका दिल्ली कब आना हुआ, अभिनय से कैसे जुड़ना हुआ, आपकी रुचि कैसे इसमें जागी, मैं ये सब आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभिनय से कैसे जुड़े और अभिनय में रुचि कैसे था। क्या होता है कि गांव में आपको पता है कि यहाँ जैसे बिहार के गांव में, मतलब गांव में सरस्वती पूजा होते हैं, दशहरा होता है, तो वहाँ पे ना जैसे मूर्ति रखने के बाद शाम को ना कोई प्रोग्राम होता है, डांस होता है, नौटंकी होते हैं, तो वहाँ पे ना हम नाटक टाइप के खेलते थे। अच्छा। और वहाँ पे भगवान के प्ले करते थे, जैसे कि डिवोशनल प्ले होता है, भक्ति, तो वो वहाँ पे हम राम बनते थे, कृष्ण बनते थे, ये सब, और डांस भी करते थे। तो डांस और अभिनय में मुझे बचपन से रुचि रहा है। अच्छा। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि जो अभिनय है वो मेरा पैशन बन जाएगा जी, तो पैशन बन जाएगा, प्रोफेशन बन जाएगा। आगे चल के मैं क्या हुआ कि जॉब के लिए दिल्ली में आया था, तो हम एक कॉल सेंटर में जुड़े। अच्छा। वहाँ पे कॉल सेंटर में मैं काम कर रहा था। अच्छा। नाइट में। तो वहाँ पे एक मेरे दोस्त मिले, राज नाम के, वो भी अच्छा। बलिया के रहने वाले हैं। और वो राज और मैं थिएटर सब सुने और हमने गूगल पर सर्च किया थिएटर क्या होता है। अच्छा। फिर हमें पता चला कि थिएटर एक ग्रुप होता है, वहाँ पे अभिनय सिखाया जाता है, अभिनय के बारे में बताया जाता है, नाटक खेला जाता है। फिर हमने सर्च किया कि दिल्ली में थिएटर है कि नहीं है। फिर हमें जब गूगल पे सर्च किए तो पता चला कि लक्ष्मीनगर में एक थिएटर है, अस्मिता, काफी थिएटर दिखा रहे थे, अस्मिता दिखा रहा था। अच्छा। एक क्षितिज करके आपका फेज 1 में थिएटर है, वहाँ भी। तो हम अस्मिता गए। अच्छा। और अस्मिता हमने ज्वाइन किया था। उस समय कोविड चल रहा था, तो क्लासेस हो नहीं रहे थे। अच्छा। लेकिन वहाँ पे मतलब मिल गया, एडमिशन हमारा हो गया। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद आइएगा। अच्छा जी। तो 1 महीने बाद गए, तो हम वहाँ पे अस्मिता पिछले 4 साल से थिएटर कर रहे हैं जी। तो अभी भी आपका जो थिएटर है वो चल रहा है? जी, थिएटर चल रहा है अभी। अच्छा। हाँ। और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपका मैंने सुना है कि अभी फ़िलहाल में एक वेब सीरीज आने वाला है जो आपके एक यूट्यूब चैनल के लिए है, जिसका नाम है मिस्टर नन्नू। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या कैरेक्टर है, कैसा वेब सीरीज है, क्या स्टोरी है, तो एक बार आप उसके बारे में बता दीजिए। जी, जैसे कि आप मिस्टर नन्नू के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिस्टर नन्नू एक ऐसी मतलब सीरीज आ रही है। आपको जैसे गांव की एक स्टोरी है और वो गांव की कहानी है। मिस्टर नन्नू की शादी होती है, एक पढ़ी लिखी लड़की रहती है शहर की। अच्छा। उसके गांव में एक लड़के से शादी होती है। अच्छा। तो उसमें मैं जो दुल्हन है, दुल्हन के मैं भाई के कैरेक्टर किया हूँ, पहलवान। अच्छा। जी। तो बहुत अच्छी उसमें कहानियां हैं। आपको क्या बोलते हैं कि गांव वाले रोमांस मिलेंगे आपको। अच्छा। साथ ही साथ उसमें बहन की विदाई होता है। अच्छा। तो किस टाइप के कल्चर, जैसे संस्कृति होता है, गांव की संस्कृति। अच्छा। वो सब आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा। फिर गांव में दोस्त जो होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है एक दूसरे से, जीजा साले का बिहेवियर क्या होता है। अच्छा।
ये काफी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो गांव की रॉ स्टोरी होती है ना। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो वेब सीरीज है कहाँ पे रिलीज हो रही है, यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, कौन सी डेट है, और डायरेक्टर का नाम भी जानना चाहूँगा। जी जी। जो डायरेक्टर उनमें मनोज कुमार नाम है उनका। जी। मनोज कुमार प्रसाद नाम है उनका। जी। वो मेरे सीनियर हैं। और जो उसमें लीड रोल में है ध्रुव, वो मेरे बैचमेट है। अच्छा। और साथ ही साथ उसमें मेरे मतलब बैचमेट है एक मेरे अच्छे दोस्त अभिषेक कुमार, वो भी बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा जी। तो डायरेक्टर भी हमारे अपने पूर्वांचल के रहने वाले यूपी साइड के। जी। और जो लड़का एक मतलब के बताएं आपको तरुण कुमार, वो जी। भी बहुत अच्छे कैरेक्टर है उनका। मतलब कि हम 4-5 दोस्तों का अच्छा कैरेक्टर है। अच्छा। और साथ ही साथ एक जीजा है। जी। जी, जैसे दूल्हे के जीजा रहते हैं उनका भी कैरेक्टर है। बहुत अच्छी कैरेक्टर है। और गांव में जीजा के साथ कैसे मतलब की कहानियां होती है, एक साला जीजा के रिश्ते कैसे होते हैं और उनके बिहेवियर एक दूसरे के साथ कैसे होता है। गांव में जब बाहर जाते हैं घूमने के लिए दोस्त एक दूसरे के साथ, तो उनका बिहेवियर क्या होता है। और माँ बेटी भाई के रिश्ते, ये आपके जितने भी गांव वाले रिश्ते हैं और कैसे बिहेवियर होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है, ये सारी कहानी गांव की है। तो आपको पता है कि सारी चीजें देखने को मिलेगी। जी, जी, जी। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल है, चैनल का नाम है डा मैवरिक स्क्रीन। अच्छा। हाँ, और ये जो हमारी वेब सीरीज है यूट्यूब की सीरीज जी, ये आपको 5 जनवरी 2025 को आने वाली है। जी 5 जनवरी 2025। जी, ये आपके आने वाला 5 जनवरी है जी। इसी 5 जनवरी को आएगी। अच्छा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जी, गुजारिश भी करता हूँ कि आने वाली 5 जनवरी को हमारा जो वेब सीरीज है मिस्टर नन्नू देखिए। जी। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मेरे बेल आइकन जो होता है, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये सारी चीज़ें मिस्टर नन्नू के बारे में मौका दिया बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपका ये जो अभिनय का सफ़र है, आपका करियर एक बड़ी ऊंचाइयों तक जाए और ऐसे ही आप काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। मैंने सुना है कि आप एक मिस्टर नन्नू करके वेब सीरीज आ रही है। जी। तो आपकी कास्टिंग उसमें कैसे हुई? देखिए, जो मिस्टर नन्नू करके वेब सीरीज आ रही है उसका जो राइटर है हमारे परम मित्र तरुण समारो नाम है उनका। अच्छा जी। और वो राइटर हैं तो मैं घर गया हुआ था। अच्छा। 1 महीने के लिए। तो उन्होंने कॉल किया कि आप इतने से इतने तारीख को अच्छा फ्री हैं। हाँ। तो मैंने कहा हाँ फ्री हूँ। हाँ। तो एक दिल्ली में आइए, आपका एक वेब सीरीज हम कर रहे हैं और उसमें आपको कास्ट किया गया है। जी। तो इस एपिसोड में जो है आपका किरदार क्या है, कैरेक्टर क्या है आपका? जो आने वाली एपिसोड है उसमें मेरा किरदार है दुल्हन के भाई का। दुल्हन के भाई का। हाँ। अच्छा अच्छा। जी। ये गांव की कहानी है। हाँ। मैं आपको बता दूं कहानी गांव की है। एक मिस्टर नन्नू रहते हैं और उनकी शादी होती है एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की से। अच्छा अच्छा। जी। तो अब ये भी बता दीजिए कि आप क्या उम्मीद लेकर के गए थे सेट पे, तो कैसी मौज मस्ती रही, कैसे लोगों के साथ, आपकी पूरी टीम के साथ क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, सबसे मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मिस्टर नन्नू में मैं एज ए एक्टर और एक एज एन एडी के रूप में काम किया हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों के अनुभव मिला मुझे, जैसे एक एडी का कार्य क्या होता है। अच्छा। हाँ, सेट पे एडी कैसे काम करते हैं। तो एडी की तरह मैंने काम किया है और एक एक्टर के रूप में भी काम किया है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये जानना चाहूँगा कि ये जो कहानी है, एपिसोड जो आ रहा है, ये किस पर बेस्ड है? ये जो कहानी है गांव की कहानी है। गांव की कहानी? जी। अच्छा। देहाती कहानी है। मैं आपको बता दूं कि इस एक कहानी का जो आधार है वो मिस्टर नन्नू रहते हैं, आपको अभी बताया मैंने। और वो जो लड़की रहती है मिस्टर नन्नू की वाइफ, वो शहर के पढ़ी लिखी लड़की होती है। तो उन दोनों पे कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा अच्छा। जी। मतलब कि गांव में जब अपने माँ बाप अपने बेटी की विदाई करते हैं। अच्छा। तो कैसे करते हैं, उनका कल्चर क्या है। गांव के कल्चर आपको पता ही होगा। बिल्कुल हाँ पता। गांव के कल्चर क्या होते हैं, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा। और साथ ही साथ जैसे कि जो लड़का होता है हाँ, उसके दोस्त होते हैं,
तो वो कैसे एंजॉय करते हैं दोस्त के शादियों में, अच्छा, पार्टी कैसे करते हैं, उनके साथ कैसे मजाक करते हैं, मजाक कैसे, ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एक जीजा और साला का रिश्ता भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, जो कि काफ़ी अच्छी है जी। जो हम्म। मतलब इसमें मिस्टर नन्नू बने हैं, हाँ हमारे बैचमेंट है, हाँ, तो उनसे और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। अच्छा हाँ, मेरा जो किरदार है उसका नाम है पहलवान। अच्छा अच्छा जी, पहलवान वैसे शरीर से पहलवान नहीं, हम्म, बस कैरेक्टर का नाम ही पहलवान है। अच्छा, कैरेक्टर का नाम पहलवान जी जी। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो एपिसोड है वो कहाँ रिलीज किया जा रहा है? देखिए, जो ये आ रहा है मिस्टर नन्नू आ रही है, हमारी जो सीरीज है, ये आपको डा मैवरिक स्क्रीन एक यूट्यूब चैनल है, अच्छा, यूट्यूब उस चैनल पे है। आ रही है जी। अच्छा, 5 जनवरी को आ रही है, हाँ 2025 में आपका ये जो अच्छा। आने वाला 5 जनवरी है, हाँ हाँ, ये 5 जन को आएगी आपको। हम्म, तो मैं आपको बता दिया कि एक रॉ स्टोरी है गांव की, हाँ जीजा साला के रिश्ते कैसे होते हैं, हाँ, बिल्कुल माँ बाप के रिश्ते कैसे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ अच्छा अच्छा, एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है, ये सारे रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसमें आपको इमोशन भी मिलेगा, इमोशन भी, ट्रेजेडी भी मिलेगा, ट्रेजेडी भी मिलेगी, रोमांस भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको कॉमिक भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 5 जनवरी 2025 को जो वेब सीरीज आ रही है हमारी यूट्यूब चैनल डा मैवरिक स्क्रीन पे, अच्छा, हाँ इस पे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल सर, लाइक बिल्कुल, कीजिए। और बिल्कुल। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ अनुभव, जब हम गए सेट पे तो वहाँ पे काफ़ी फनी मोमेंट था। फनी मोमेंट था, हाँ, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे, हाँ हमारे को एक्टर थे, हाँ, सारे एक दूसरे के जानते थे, पहचानते थे। अच्छा, मतलब तो पहले के आप, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही वहाँ पे। अच्छा, बात करने में, अभिनय करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी। हुई आप लोगों को? देखिए, मैं तो एक गया था वहाँ पे उम्मीद लेके कि मेरा कैरेक्टर बस इतना है इतना है, हाँ लेकिन जब वहाँ पे गया मैं, हाँ, तो जो डायरेक्टर है, हाँ, मैंने पहली बार उनकी डायरेक्शन में काम किया हूँ। अच्छा, पहली बार आपने काम हाँ, किया है उनके ये साथ? जो वेब सीरीज आ रही है पहली बार उनके साथ डायरेक्शन में काम किया हूँ। अच्छा अच्छा, तो उनकी विजन देखा मैंने, उनको समझाने के तरीके, और साथ ही साथ उनके साथ काम करने का जो मज़ा आया, इससे पहले मैंने दूसरी जगह काम भी किया हूँ, तो इतना मज़ा नहीं आया, इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि हमने जब लास्ट दिन पैकअप था तो काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। उस रात को हमने सोए नहीं थे। अच्छा अच्छा जी, केक काटे, आपस में मस्ती किए। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो 5 जनवरी 2025 को हमारी सीरीज आ रही है, हाँ, मिस्टर नन्नू करके हाँ, चैनल है, जो डा मैवरिक स्क्रीन, द मैवरिक स्क्रीन, अच्छा, इस पे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो हमारे बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू जी, ठीक है। हेलो, मेरा नाम अभिषेक रंजन है और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैंने 1 साल तक थिएटर भी किया है और उसमें मैंने 3 प्लेस कर रखे हैं। साथ ही मैंने 2 एड शूट किया हुआ है एंड अभी जस्ट मैंने एक वेब सीरीज़ किया है, जिस वेब सीरीज़ के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है मिस्टर नन्नू। हाँ जी, मिस्टर नन्नू। तो उस वेब सीरीज़ का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। लाइक मैंने वेब सीरीज़ में एज़ एन एक्टर भी काम किया है और एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है। तो मेरी लाइफ़ का पहला ये वेब सीरीज़ कह सकते हैं, एज़ एन एक्टर भी है और एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। तो बात कुछ ऐसी थी कि इसमें जो मिस्टर नन्नू का किरदार कर रहा है, मेरा एक दोस्त है ध्रुव, तो उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे उसका स्टोरी देखा, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने सोचा कि चलो यार, एक बार इसमें भी ट्राई करते हैं और कुछ सीखने को ही मिलेगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सोच के मैंने प्रोफ़ाइल भेज दिया एंड देन अगले दिन मुझे बुलाया गया वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं काफ़ी डरा हुआ था एक्चुअली। मैं जैसे एक्टिंग के ऑडिशंस के लिए जाता हूँ तो उतना डर नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी ऑडिशंस दे रखा है तो वो हो गया। बट एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर ये पहला ऑडिशन था, तो मुझे पता नहीं था कि लाइक ऑडिशन कह लीजिए या इंटरव्यू कह लीजिए। तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे मतलब चीज़ें होती हैं, कोई आइडिया नहीं था मेरे पास मुझे। तो वहाँ पे फिर मुझे बुलाया गया, मैं गया और पहले तो उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये लगी कि मतलब मुझे जाते ही
पानी वानी ऑफर किया गया, मस्त कंफर्टेबल कर दिया गया। देन आफ्टर दैट मुझे वो स्क्रिप्ट मिला, स्क्रिप्ट में कुछ सीन थे, 5-6 सीन मुझे बोला गया कि पढ़ने के लिए, देखने के लिए, और एज एन मतलब एज ए डायरेक्टर जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है उन सब चीज़ों को आप ये एक वही पेन दिया गया और एक डायरी दी गई, इसमें नोट डाउन कर दीजिए। अब मैं लाइक आई वाज ब्लैंक। उस टाइम पे मैं सोचने लग गया कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। थिएटर का एक्सपीरियंस था ऑलरेडी, तो कुछ चीज़ें पता थी कि लाइक क्या प्रॉप्स होते हैं, कोई सीन में प्रॉप्स होते हैं, सेट वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ें थी। बट कैमरा का अभी मतलब उस टाइम अभी कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फिर कुछ देर सोचने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैंने ट्राई किया, मैं लिखता रहा और मैंने सीन वाइज़ प्रॉप्स लिखे हैं। फिर सेट क्या हो सकता था उसमें, सेट का डिज़ाइनिंग क्या हो सकता था, मतलब ये सब चीज़ें मैंने अपने हिसाब से लिखा और उन लोगों को मैंने बता दिया। देन आफ्टर दैट मैं वहाँ से घर आ गया और मैंने ध्रुव को बोला कि यार मुझे नहीं लगता है कि सिलेक्शन होगा, आई थिंक। उसने बोला कुछ मतलब कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं, मे बी हो जाए। एंड नेक्स्ट डे मेरे को ध्रुव का कॉल आता है कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे मतलब एक एक्सपीरियंस मिलने वाला था इतने बड़े सेट का, हर चीज़ का, कैमरास का कि क्या कैसे होने वाला है, तो मैं खुश था। फिर हमारे रिहर्सल्स चालू हुए, तो रिहर्सल्स के लिए हम लोग मिलते थे एक जगह। वहाँ सारे एक्टर्स एंड सारे क्रू मेंबर्स सब लोग पहुँचते थे, डायरेक्टर सब आते थे, जो हमारे राइटर प्रोड्यूसर हैं वो आते थे। मुझे जैसे कि आपको बता दूँ कि डायरेक्टर जो है हमारे वो मनोज सर हैं, मनोज के प्रसाद, और जो हमारे राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं वो तरुण सर हैं। तो मतलब ऐसा एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो गया हम लोगों के बीच में। ऐसा हो गया कि मतलब ये ऐसे सर वर मतलब ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं था, एकदम भाई 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 इस टाइप का हो गया हम लोगों का। तो मतलब काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस वहाँ पे। और फिर हाँ, फिर रिहर्सल्स हमारे होने लगे रोज़ दिन होते थे। फिर नए-नए एक्टर्स से मिलना हुआ हमारा, जो भी इस वेब सीरीज़ में साथ में हमारे, तो उनसे बातचीत हुई और मतलब धीरे-धीरे काफ़ी सॉरी, काफ़ी अच्छी बातचीत रही और रिहर्सल्स चलते थे, रात-रात भर चलते थे, मतलब 10-10 बज जाते थे, कभी 11 बज गए, कभी साढ़े 11, 12 भी बज जाते थे। हम चाय पे जाते थे सुदामा पे, वहाँ जाके चाय वग़ैरह पीते थे और फिर वहाँ भी रिहर्सल्स चलते थे हमारे, मतलब लाइक अगर कोई सीन इम्प्रोवाइज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें चल रही थी, काफ़ी अच्छी जा रही थी सब कुछ। फिर उसके बाद फाइनली वो डेट आ जाता है कि जब से हमारा शूट स्टार्ट होने वाला था। वी आर सो एक्साइटेड। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं अ, लोकेशन पे। लोकेशन पे हाँ, नहीं, 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 उससे पहले भी लोकेशन पे हम लोग एक बार मैंने विज़िट किया था। हाँ, आई थिंक एक बार मैंने विज़िट किया था। फिर वहाँ हम लोग गए थे, हर एक चीज़ देखा था कि क्या है लोकेशन पे, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। फिर उसके बाद फिर जब हम लोग लोकेशन पे आए शूट के लिए, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट डे से लेके डे 5th तक सब कुछ अच्छा चल रहा था सेट पे। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कैमरा एंगल कैसे होता है, कौन से कैमरे से मतलब कैसे क्या-क्या फ़ेस करना होता है कैमरे को, हर एक चीज़ सीखने को मिला। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारे डायरेक्टर सर थे ना, वो मतलब इतना फ्रेंडली थे ना, वो मतलब चाहे हम असिस्टेंट डायरेक्टर्स से हो या चाहे एक्टर्स से हो, उन्हें पता था कि किस एंगल से कब कौन से सीन में कैसे सीन निकलवाना है एक्टर से। ये सबसे अच्छी बात लगी उनकी मुझे। तो वो मतलब जैसा चाहते थे उनको शॉट्स मिलते गए, जब उन्हें लगता था कि नहीं, मतलब उन्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या थी उनकी कि वो ही नोज़ कि कैसे सीन को निकलवाना है एक्टर से, मतलब उसी एप्रिसिएशन के साथ उसको एप्रिशिएट करते हुए और काफ़ी अच्छे से सीन निकलवा देते थे। तो वो काफ़ी अच्छा लगा और वो चीज़ें देख-देख के मुझे भी मतलब इंटरेस्ट आने लग गया कि ये डायरेक्शन वगैरह में। तो मैं चाहता हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ, मतलब कोशिश करूँगा कि बस भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से अगर कभी ऐसा मौका मिला तो मैं भी कोई डायरेक्ट करने की चाहूँ, कोई भी मतलब ऐसा कोई सीरीज़ या प्रोजेक्ट डायरेक्ट करना चाहूँगा। तो अ, उनके मतलब गाइडेंस में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक हमारी चीफ़ एडी थी और साथ में मेरा एक और जो असिस्टेंट डायरेक्टर सेकंड थे वो थे, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फर्स्ट था। तो
उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉल शीट क्या होता है, लॉग शीट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब चीज़ सीखने को मिला। उसके बाद काम हमारा सेट पे काफ़ी अच्छा चल रहा था। लाइक एज एन एक्टर भी मैंने इसमें काम किया, तो एक्टिंग तो चल रहा था। फिर डायरेक्शन में वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी चलता था। फिर रात के आई थिंक हम लोग वही पैकअप हम लोग मतलब करते थे वहाँ से वही 8-9 बजे के आसपास में हो जाता था पैकअप। फिर वहाँ से हम लोग निकलते थे और फिर होटल पे आए। फिर वहाँ पे काम वाम होता था, अगले दिन का कॉल शीट वगैरह बनाना, फिर सारे एक्टर्स को भेजना, ये सब चीज़ें चलती थी। एंड देन एक दिन मुझे याद है कि लाइक बहुत लंबा मतलब शूट चला था। और फिर उसके बाद फिर चलते हुए हाँ, शाम में ये हुआ कि मैं और जो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर सेकंड थे वो और डायरेक्टर सर, हम तीनों सेट पे ही रुक गए रात में। और फिर वहाँ काम हुआ काफ़ी देर तक। हम लोग सुबह के 4 बजे तक आई थिंक जगे हुए थे, काम कर रहे थे। देन आफ्टर दैट फिर 4 बजे, हाँ 4 साढ़े 4 पे हम सोने गए, 6 बजे सुबह फिर उठ गए। फिर सेट वेट क्लियर करो, सेट लगाओ, हर एक चीज़ सब कुछ शुरू हुआ। फिर एक्टर्स आए और फिर शूट स्टार्ट हुआ। कंटिन्यूटी को लेके भी हमने काफ़ी अच्छी कोशिश की है कि वो भी रखें। ये भी चीज़ मुझे नया सीखने को मिला वहाँ पे। नई चीज़ें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया मैंने, मतलब मज़ा आया सेट पे। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज़ सो गुड। तो मतलब मैं और फिर देखते-देखते वो हुआ कि आखिरी दिन आ गया जब सेट पे फाइनल पैकअप हुआ और लाइक मतलब मज़ा आ गया। फिर फ़ोटो सेशन वगैरह हुआ। फिर अ, रात भर हम सोए नहीं, हम सब सारे सेट पे सोए नहीं थे। हम लोग जगे रहे और फिर सुबह हो गई और काफ़ी मस्ती हुआ, बीटीएस वगैरह भी बना। और सुबह में एक्चुअली फीडबैक का टाइम आया था, तो उस टाइम भी काफ़ी अच्छा लगा जब फीडबैक मिल रहा था सबको। तो डायरेक्टर सर से मुझे भी फीडबैक मिली और काफ़ी अच्छी फीडबैक थी। उन्होंने लाइक बोला कि जब अभिषेक आया था तो हम लोगों के लिए अननोन था। एंड आफ्टर दैट हमें सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये लगी कि मतलब जब हमने बोला कि ये सीन है, ऐसे-ऐसे कुछ पेन पेपर पे लेके लिख दो तो इसके बारे में, तो वो ब्लैंक था बट उसने ट्राई किया। उन्होंने ये बोला कि उसने कोशिश की, छोड़ा नहीं। तो वो मतलब उन लोगों को अच्छा लगा, तो उन लोगों में बातचीत हुई और फिर मुझे सेलेक्ट किया गया था एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर। देन फिर वही उन्होंने फीडबैक दिया और मतलब मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हूँ, तो अ, मतलब इमोशनल हो जाता हूँ। तो और ये इन लोगों से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई मेरी, लाइक अपने बड़े भाई की तरह। तो वही था फीडबैक के टाइम पे, वही इमोशनल हो गया, रोने लग गया, सब लोग रो रहे थे। और फिर वो मतलब क्या बोलूँ, वो मिस कर रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल। वो जो सिनेरियो था, काफ़ी अच्छा सिनेरियो था। और फिर देन उसके बाद सेट पे मतलब सेट पूरा खाली करके हम लोग वहाँ से फिर से वापस रवाना हो गए दिल्ली के लिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ, सारे क्रू मेंबर्स को, सारे एक्टर्स को, अ, मुझे भी कंफर्टेबल फ़ील करवाने के लिए। और इतने अच्छे तरीके से मतलब एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड था सबके बीच में, तो वो बहुत अच्छा था। और साथ ही साथ डायरेक्टर सर को मैं बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मनोज भाई को। क्योंकि उनके गाइडेंस में रह के मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और हमारे जो डीओपी थे, डीओपी दादा तो भाई मतलब बहुत ही अच्छे थे, लिटरली बहुत अच्छे, जिनको कहा जा सकता है। तो उनके साथ भी मज़ा आया। फिर जो हमारे राइटर प्रोड्यूसर हैं ये तरुण भाई, उनकी तो क्या ही कहूँ, मतलब उन्होंने एक्टिंग भी किया एक्चुअली इसमें। तो मतलब मज़ा आ रहा था। कोई भी सीन अगर इम्प्रोवाइज़ेशन चल रहा है तो उसमें भी जान डाल देते थे वो। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे बहुत ही एक्सीलेंट था, बहुत ही एक्सीलेंट कह सकते हैं। तो दैट्स इट, ये एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ का सेट का। और काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली। फर्स्ट टाइम इतने बड़े सेट पे मैंने काम किया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपने पूरी वीडियो देख ली, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा आपने ये वीडियो देखी। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, और नन्नू की शादी में आप ज़रूर आइएगा। और आई विश आप सभी बढ़िया रहे, खाना पीना खाते रहे। बारिश हो रही थी भाई, बारिश तो हो ही रही है बहुत ज्यादा। वैसे अभी ठंड भी हो गई है, रुक चुकी है बारिश।
तो लेट्स मूव टू मैगडी। अपन चल रहे हैं मैगडी की तरफ। लाइट जला देते हैं, आपको हमारा तोपड़ा दिखता रहेगा। हमारी कार में कोई सीन क्रिएट हो रखा है। एक सेकंड में ब्लूटूथ बंद कर दूं, बंद हो जाती है बार बार कार हमारी, तो ब्लूटूथ बंद करना जरूरी था। तो बहुत ज्यादा हो गई है भैया। एक्चुअली कार हमारी समुद्र में डूब गई थी भाई, इतना पानी था, इतना एकदम ऐसे लगा और तभी बंद। मैं कहा भाई मैं तो गया, आज धक्का मेरे को ही मारना पड़ेगा, बैठा तो मैं ही था। और भाई गलती से पता नहीं कैसे हमारी कार निकल गई वहां से, गड्ढे में से। एक बार घर पे कॉल करके बोलते हैं हम मैगडी जा रहे हैं और ऑर्डर हो नहीं रहा कुछ बारिश की वजह से। बाहर से गेट बंद करके आ रखे हैं ना। तो गाइस, तो हम यही बता रहे थे कि नन्नू की शादी यार बहुत हमारी लाइफ का अहम पार्ट है। 2021 में स्टार्ट हुई थी इस स्टोरी की कहानी। करते 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 करेंगे स्टार्ट। हमने प्लान करा था 2021 में स्टार्ट करते हैं, फिर हुआ कि नहीं 2022 में करते हैं। मतलब प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था फर्स्ट थिंग, और इतनी इन्वेस्टमेंट जो हमारी सेविंग थी, सब प्लान कर रहे थे कि कैसे क्या करेंगे। ऑल्दो हो गया, काफी अच्छा हुआ और काफी बजट में रखा हमने, ठीक है। इन बिटवीन हमारा जो प्रोड्यूसर भाई साहब थे डिच आउट कर गए हमें, कोई नहीं होता है, पर जो भी हुआ यार अच्छा ही हुआ। कर रहे हैं और अच्छा होता रहेगा। हमारी टीम में सभी ने काफी मेहनत करी है। ये डीओपी साहब है। नमस्कार दोस्तों। खैर कैमरा मैंने पकड़ रखा है अभी और ड्राइव भी कर रहा हूँ भाई, लेकिन आप मत करना। हाँ लेकिन आप मत करना, मैं तो पागल आदमी यार। तभी ये मूवीज बना रहा हूँ भाई। करो थिएटर करो, एक्टिंग सीखो, डायरेक्शन करो। बहुत सारी चीज लर्न करने को मिलती है, मजे आते हैं सेट पे। ऐसी चीजें होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो चीजें क्रिएट हो जाती है। और हमारी कार फिर बंद हो गई भाई, मुद्दे की बात है ये। ओ भाई स्टार्ट होगी। चलो 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 मोहतरमा तेरी तीखी नजर। तो हम कहाँ थे? हम थे भाई डीओपी पे। लाइट बंद कर दी, सॉरी माय मिस्टेक गाइस। तो सभी को आपको आना है, नन्नू की शादी देखनी है। हमने काफी बातें कर ली है और भी बातें करेंगे, मेरी बातें खत्म नहीं होती। जुड़े रहिए, बने रहिए। 5 तारीख को आएगी। आई विश आप देखें और घर वालों को भी दिखाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने गांव वालों को दिखाएं, अपने भाइयों को दिखाएं, अपनी बहनों को दिखाएं, अपने सालों को दिखाएं, अपने जीजाओं को दिखाएं, सभी को दिखाएं। माँ बाप दादा सबका बदला जो भी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, पर सभी को दिखाइए, मजा आएगा यार। कुछ अलग है, कुछ अलग अलग कहानियां हैं। कहीं पे कुछ होने वाला है, उसकी बीवी का टाका कहीं और भिड़ा हुआ है, किसी का कहीं भिड़ा हुआ है, किसी का कुछ फंस रहा है, किसी का कुछ निकल रहा है, किसी का कुछ चोरी हो रहा है। आज चोरी तो खैर आगे होएगा, तो पेट फूल जाता है, समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो यही है भाई, कैमरा हमारे सामने रखा, हम बोलते रहेंगे, ये हमारा काम है बोलना। ऐसे ही लगे रहेंगे और आप देखते रहना। हम आपको मौका भी देंगे, एडवर्टीजमेंट डालेंगे, बुलाएंगे आपको, आप आइएगा, भाग लीजिएगा। जितना होगा हम करेंगे, आप भी हमारे लिए इतना करिए कि ये वीडियो देखिए और आगे भी देखिए। 5 तारीख को भी देखना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सुभान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, जो भी है व्हाटएवर। मिलेंगे आपसे दोबारा जल्दी। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। ओके गाइस, बाय 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 बाय। जय भोलेगी, जय शिव शंकर, राधे राधे।